Hello dear children, beta today we'll start with the new topic, that is pronoun. What do you mean by pronoun in Hindi? We call it सर्वनाम, है ना. आपने पढ़ा होगा जो संज्ञा के स्थान पे शब्द लगते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं. प्रोनाउन दो वर्ड से बना है बेटा, प्रो प्लस नाउन. ओके, तो प्रो व्हाट डू यू मीन बाय प्रो? नाउन वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. तो प्रो मीन्स होता है इन प्लेस ऑफ, है ना, के स्थान पर या जगह पे आप बोलते हैं, ठीक है ना. किसके स्थान पर बेटा? नाउन के. इन प्लेस ऑफ नाउन मीन्स वर्ड प्रोनाउन आर ऑल्सो द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. जो नाउन के प्लेस पे वर्ड्स यूज होते हैं उनको हम कहते हैं प्रोनाउन. ओके, नाउ व्हाई डू वी यूज प्रोनाउन? जस्ट लाइक आपने पढ़ा होगा ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ऑल आर प्रोनाउन्स. इन द जूनियर क्लासेस यू हैव स्टडीड ऑल दीज वर्ड्स, बट इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी मोर about the nouns pronouns. What the pronouns is, again I am telling you, pronouns are the words that we use in place of noun. Noun को replace करते हैं. In place of noun कह लो या replace noun बोलो. Replace करना भी होता है बेटा, उसकी जगह ले लेना. किसकी जगह ले लेना? Noun की जगह, ठीक है. अब क्वेश्चन आता है कि why do we use pronoun? नाउन को नाउन क्यों ही नहीं छोड़ सकते? प्रोनाउन को हम इसलिए यूज़ करते हैं बेटा नाउन की जगह, टू स्टॉप और वी कैन से टू अवॉइड द रिपीटेशन. जस्ट लाइक मैं किसी का नाम बार बार बोलती हूँ तो इट डज नॉट साउंड्स वेल एंड डज नॉट गिव गुड सेंस वाइल स्पीकिंग इंग्लिश एंड राइटिंग इंग्लिश. सो टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ एनी नाउन, किसी भी नाउन का नाम बार बार आने से रोकने के लिए हम यूज़ करते हैं उसकी जगह प्रोनाउन. ओके, टू स्टॉप द रिपीटेशन, प्लीज फोकस ऑन दिस. टू स्टॉप और वी कैन से अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ द नाउन. नाम को बार बार रिपीट होने से बचने के लिए हमें प्रोनाउन को यूज़ करना पड़ता है. ओके, आई लेट यू I tell you through some examples. See, I have written an example over here. With the help of this example, I will make you clear why do we use pronoun in place of noun. Just read this sentence. Some sentences I have written. Okay, I have written a paragraph there. Just like the see first, Ramesh is an intelligent boy. Right? This is a sentence. Here we are talking about Ramesh. It's a noun. Okay, boy is also a noun, but boy and Ramesh is the same person. So this is noun. Fine. Here I am introducing noun. Now read the next sentence after this. Again I have repeated Ramesh. Ramesh always speaks truth. So have you noticed here? Again I have repeated the name of Ramesh here. So have you seen? मैंने noun उसी रमेश नेम को दोबारा repeat किया. Again further in the third sentence, Ramesh obeys. Ramesh apostrophe है parents. रमेश अपने पेरेंट्स को obey करता है. He always listen to them. Okay. Then again I have here repeated Ramesh, or again I have repeated. See, I am just circling the words जो noun मैं repeat कर रही हूँ. See the next again after this, Ramesh father is a doctor. Again I have repeated Ramesh here. Okay. The next is Ramesh complete his work on time. Again I have repeated Ramesh. Have you noticed here in this paragraph I have written some few sentences over here and again I am repeating the name of Ramesh again and again, again and again and again. So how many times Ramesh name has been repeated? Once, twice, thrice, then fourth time, 5 and 6. 6 times I have repeated the name of Ramesh. So it आप देखिए पढ़ने के तरीके से grammatically it is correct, but to make the English language very appearing in front of when we speak in front of someone else, तो वो sound well नहीं करता है लिखते समय और बोलते समय. तो to stop the repetition, इस नाउन के नाम को रिपीट होने से बचने के लिए we will use pronoun in place of these nouns which I have repeated. तो what will I do when we talk about the person first time, ठीक है, उसमें we just introducing the person, उसको हम introduce कर रहे हैं, ठीक है. तो at that time we are introducing. Okay, यहाँ पे हम उसका परिचय दे रहे हैं कि वो पर्सन मस्कुलिन है कि फेमिनाइन. तो रमेश विद द नेम ऑफ दिस वी गेट टू नो ही इज़ अ मस्कुलाइन जेंडर. ये पुल्लिंग है, एक पुरुष का नाम है. ओके, मेल पर्सन का है. तो यहाँ पे आपको कोई चेंज इन द फर्स्ट टाइम वी नेवर मेक एनी चेंजेस. एज इट इज़ वी विल राइट द नेम रमेश, बट इफ द सेम नेम इज रिपीटेड हियर, तो इन प्लेस ऑफ दिस रमेश, this one and this one, we will not use Ramesh again. Instead of repeating the name of Ramesh, you know, for masculine gender we always use he. He pronoun हम एक masculine gender के लिए यूज़ करते हैं. As we get to know कि रमेश आपका masculine gender, तो we will write here he.
सो सी, अगर मैं रमेश की जगह लिखूंगी ही ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ, ही माना वह लड़का, कौन लड़का, रमेश, वह एक लड़की लगता है, ही ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। अगेन यहाँ पे फिर दोबारा मैं ही बोल दूंगी, ही ऑलवेज, अभी अपोस्ट्रोफी है रमेश तो इसको लिखेंगे हिज फादर, ओके, इसकी जगह हम रमेश का जो अपोस्ट्रोफी था इसकी जगह हम लिख देंगे हिज फादर, ओके। देन अगेन अपोस्ट्रोफी वाला रमेश तो अगेन यहाँ हिज आ जाएगा, उसके पापा, लड़की के लिए ही, हिज और हिम लगता है। फादर इज अ डॉक्टर, अगेन यहाँ पे रमेश फादर, ठीक है, तो हिज फादर, ओके। देन रमेश, देन अगेन ही, इट विल राइट ही हियर, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी नहीं है तो हम डायरेक्टली ही लिख लेंगे। जब अपोस्ट्रोफी होता है तो उसकी जगह हिज लगता है, हिज मतलब उसका, रमेश का मतलब रमेश के पापा का। तो हैव यू नोटिस हियर in the first time we never make any changes, but the same noun is repeated again and again, so we'll use pronoun in place of that noun. तो simple सी definition थी, pronoun noun को replace करता है, means take the place of noun. Okay, बेटा, now we will discuss about kinds of pronoun. First I told you what the pronouns are. Pronouns are the word used in place of noun. Now how many types of pronouns do we have in English? Especially, exactly, there are 7 types of pronoun, right? But it is vary from book to book as per the standard. So the pronouns are mainly of 6 types. कौन से बेटा? First one is your personal pronouns, okay? It is personal pronouns. Second is reflexive pronoun. Reflection समझते हैं, when we see in the mirror it reflect our same picture to us, right? So reflexive pronoun. Next, third one is your empathetic, okay? एम्पैथेटिक प्रोनाउन, और एम्पैथेटिक को हम कह सकते हैं एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। एम्फेसाइजिंग का मतलब होता है टू स्ट्रेस, स्ट्रेस मीन्स किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा, किसी चीज़ को इंसिस्ट करना, राइट, स्ट्रेस, ओके। तो इसको एम्पैथेटिक ना बोल के भी एम्फेसाइजिंग के नाम से भी आ सकता है। फोर्थ वन इज योर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, ओके। ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी मैंने आपको पढ़ाया था, वर्ड ही डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है ना, ये एडजेक्टिव भी होते हैं और ये प्रोनाउन का काम भी करते हैं। आई विल टेल यू द डिफरेंस व्हेन वी विल डिस्कस दिस, okay, separately. Now number 5 is your interrogative pronoun. Same interrogative is also discussed in adjective, okay. Next is your possessive pronoun, and last one, that 7th one, is your relative pronoun, okay beta. In class 3rd, it as I told you, ये mainly 7 होते हैं, but आपकी बुक में हो सकता है ये किसी में 4 टाइप्स ही दिए हो और किसी में वो 5 टाइप्स दिए होते हैं। By as your standard will grow, ओके, जैसे अपग्रेड होगा तो आपका बेटा ये चेंज होकर मिलेगा, बट एग्जैक्टली जो होते हैं मेनली 7 होते हैं जो भी हम जूनियर क्लासेस में पढ़ते हैं, ओके। सो दिस इज नॉट गिवन इन योर सिलेबस, फॉर ओनली फॉर योर नॉलेज आई हैव रिटन हियर, ओके, अदरवाइज इट इज नॉट इन योर सिलेबस। ओनली दीज 5 काइंड्स ऑफ pronouns are given in your book that we are going to discuss one by one. Okay beta, first we will discuss about personal pronoun, that is first kind of pronoun. What the personal pronouns? Personal pronouns होते क्या बेटा? Pronouns that stand for persons or things, या persons या things के लिए जो stand करे means use हो, उनको हम कहते हैं personal pronoun. That stand for persons or things. It stand for 3 person, और personal pronoun को हम 3 persons में divide करते हैं बेटा, ठीक है। How many persons? 3 persons में, या persons किस तरीके, just like first person, second person and third person. पर्सनल प्रोनाउन को हम 3 पर्सन्स में डिवाइड करते हैं क्योंकि 3 पर्सन्स के लिए यूज़ होता है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, इसको बेटा आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर इस फॉर्म में लिख सकते हो, बोथ विल बी करेक्ट। आई हैव रिटन बोथ फॉर योर हेल्प, ओके। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस आर दोज प्रोनाउन विच इज़ यूज फॉर फर्स्ट पर्सन, दैट इंक्लूड्स, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में कौन से प्रोनाउन आते हैं बेटा? आई, मी, वी, अस। आपने आज तक आई और वी ज़्यादा पढ़ा है, ठीक है ना। आई का ही ये ऑब्जेक्टिव केस होता है, ये सब्जेक्टिव केस होता है। आई इज़ यूज एज अ सब्जेक्ट एंड मी इज़ यूज एन ऑब्जेक्ट दैट आई विल टीच यू, ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके। सी, वी एंड अस, ये आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। एंड व्हाट फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होता है? दे आर यूज्ड, ये कब यूज़ किए जाते हैं? वी, मी और अस बेटा, इट इज़ यूज्ड फॉर द पर्सन हु स्पीक्स, ये वो पर्सन यूज़ करते हैं एट द टाइम ऑफ द पर्सन हु इज स्पीकिंग। जस्ट लाइक आई एम स्पीकिंग हियर, सो मैं अपनी बात कर रही हूँ तो मैं अपने लिए आई लगा रही हूँ, ठीक है, ओके। एंड वी आर लर्निंग इंग्लिश, तो यहाँ पे मैंने वी बोला है, देखो, तो वी यूज़ कर रही हूँ। वी इंक्लूड्स आई, आई का प्लूरल होता है बेटा, ठीक है ना।
वी आई जो होता है वो मी में इंक्लूड होता है, बिकॉज जब हम वी बोलते हैं तो वी में जो पर्सन बोल रहा है वो अपनी बात भी कर रहा होता है और अपने साथियों की बात भी कर रहा होता है। तो यहाँ हम इंग्लिश सीख रहे हैं, मैं भी सीख रही हूँ, आप भी सीख रहे हो, तो वी इज़ ऑल्सो द प्लूरल ऑफ आई। आई सिंगुलर होता है, आई का प्लूरल वी होता है। ओके, द पर्सन हु स्पीक्स, जो बोल रहा होता है सेंटेंस को, जो बात कर रहा होता है, वो अपने खुद के लिए, एक बॉय है वो भी अपने लिए आई लगाएगा, वन गर्ल है वो भी अपने लिए आई लगाएगा, ये कॉमन में होता है। ठीक है, now come to second person pronoun. What is second person pronoun? You and your, these two words comes under second person pronoun and it stands for the person who's spoken to. Spoken to means to whom I am talking, जिससे मैं बात कर रही हूँ। Okay, just like I am talking to you, तो I am using you for all. Okay, मैं आप सबको you बोल रही हूँ instead of repeating your name. So I am using you here. You and your. It is used for the person spoken to, जिसके बारे में, जिससे बात की जाए। फाइन, तो यू इज ऑलवेज रिमेन सेकेंड पर्सन। ओके, नाउ कम टू दैट इज थर्ड पर्सन प्रोनाउन। व्हाट द थर्ड पर्सन प्रोनाउन, इसमें देयर आर मेनी प्रोनाउन दैट इज यूज्ड इन थर्ड पर्सन प्रोनाउन, दैट इज ही इज यूज फॉर वन बॉय, वन मस्कुलाइन जेंडर। ओके, द पर्सन, और ये किसके लिए यूज होता है बेटा, आई विल टेल यू फर्स्ट, इट इज यूज फॉर द पर्सन स्पोकन ऑफ या स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में बात की जाए। जैसे लाइक मैं आपकी बात आपसे बात कर रही हूँ और मैं किसी और पर्सन के बारे में आपको बता रही हूँ, तो उस पर्सन के लिए मैं एक मैन होगा तो ही और वुमेन होगी तो शी लगाएंगे सिंगुलर में। ओके, और इट लगाएंगे बेटा हम नॉन लिविंग थिंग के लिए और एनिमल्स के लिए। ओके, सिंगुलर में। एंड देयर इज द प्लूरल ऑफ ही एज वेल एज शी एज वेल एज इट। दे सबका प्लूरल, दे मीन्स वे, इट कैन, दे इज यूज फॉर टू पर्सन्स, मीन्स टू masculine gender. When we talk about two feminine gender, again we use they. And when we talk about two non-living things or the animal, again we use they in plural form. Okay. Okay beta, see I have made there is a table given here about the personal pronoun. Okay, so many pronouns also comes under as a subject. कौन सा कैसे सब्जेक्ट के हिसाब से यूज़ होता है, कैसे ऑब्जेक्ट और कैसे पॉसेसिव, वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, सी यहाँ पर्सन्स लिखा है, पर्सन्स को हम 3 पर्सन्स में डिवाइड करते हैं पर्सनल प्रोनाउन को, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। सिंगुलर कौन सा होता है प्रोनाउन में से, प्लूरल कौन सा होता है, जिसे होता है सिंगुलर होता है आपका आई। ये सब्जेक्टिव केस होता है जो एक्शन करता है, जो आपका डूअर ऑफ द एक्शन होता है बेटा। ठीक है ना, जो डूअर ऑफ द एक्शन, जो एक्शन करता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, जो वर्ब से पहले आता है। तो यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये एक बॉय अपने लिए खुद के लिए भी यूज़ करता है। पर्सन हु स्पीक्स, जो बोलता है वो अपने लिए यूज़ करता है। इट कैन बी यूज बाय ए गर्ल और अ बॉय। ठीक है, एज एन ऑब्जेक्ट मी मीन्स ये वर्ब के बाद लिखा जाए, इससे कभी सेंटेंस शुरू नहीं होता, ऑब्जेक्ट हमेशा एंड ऑफ द वर्ड आता है। जस्ट लाइक हम बोलते हैं ना, शी gave me a chocolate here. तो see this is verb here, this is verb को हम एक्शन भी कहते हैं, है ना बेटा, वर्ब को हम एक्शन भी कहते हैं। तो एक्शन कौन कर रहा है बेटा, शी कर रही है, देखो यहाँ प्रोनाउन, तो ये एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है प्रोनाउन। ठीक है, वर्ब से पहले, और वर्ब के बाद देखो ये मी हो रहा है, और मी एज ए ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट मतलब जो एक्शन को रिसीव करता है, ये एक्शन करता नहीं है, रिसीव करता है उसके बाद आता है। एक्शन करता है उसका नाम वर्ब से पहले आता है, तो ये एज अ सब्जेक्ट यूज़ होता है। सब्जेक्ट मीन्स डूअर ऑफ द एक्शन। तो सी हियर सब्जेक्टिव केस में जो सब्जेक्ट के तरीके से, और ऑब्जेक्ट मतलब जो आफ्टर द वर्ब यूज, इनसे सेंटेंस ऑब्जेक्ट से कभी, ऑब्जेक्टिव केस जो होता है पर्सनल प्रोनाउन का, उनसे कभी सेंटेंसेस स्टार्ट नहीं होते। ठीक है, आई का मी होता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, मैं, मुझे, और माइन होता है पॉजेसिव। पॉजेसिव अभी आपकी ग्रुप उसमें नहीं है सिलेबस में, बट फिर भी मैं बता रही हूँ माइन। ठीक है, नेक्स्ट इज, इसका जो प्लूरल होता है, आई का प्लूरल होता है बेटा वी होता है हम। जब आई, इसके अंदर आई भी शामिल, जब हम अपनी खुद की बात करते हैं और अपने आस पास के लोगों की या खुद अपने दोस्तों की, तो उसमें हम अपना नाम भी इंक्लूड करते हैं, आई भी उसमें अपना नाम शामिल करता है, इसलिए हम उसको वी कहते हैं। वी एज अ सब्जेक्ट केस यूज़ होता है प्लूरल में, और उस वी का ऑब्जेक्ट केस में आफ्टर द वर्ब जो आता है वो अस आता है, अस माने हमें, और पॉजेसिव होता है उसका आवर्स। तो इसको ऐसे याद करेंगे, आई, मी, माइन, we, us, ours, that is first person pronoun, personal pronoun. second person pronoun होता है the person who spoken to, जिससे बात की जा रही है। जैसे मैं यहाँ आपसे बात कर रही हूँ, तो you जो होता है वो सिंगुलर में भी यू रहता है एज ए सब्जेक्ट भी और ऑब्जेक्ट, और उसका पॉजेसिव होता है yours। ठीक है, प्लूरल में भी यू का यू सिंगुलर भी यूज़ हो सकता है, प्लूरल। ओके, आई विल टेल यू कब सिंगुलर कब प्लूरल होता है। जस्ट लाइक आई हैव रिटन अ सेंटेंस हियर,
यू आर अ स्मार्ट बॉय। यहाँ पे यू है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है? यहाँ पे ये सिंगुलर है, एक के लिए यूज़ हो रहा है, क्योंकि मैंने वहाँ लिखा है अ स्मार्ट बॉय, एक बॉय की बात कर रही हूँ इसलिए आ लगा है, ठीक है। बट यू आर स्मार्ट बॉयज़, अगर मैं यहाँ बॉयज़ लिख रही हूँ तो यहाँ यू मैनी के लिए यूज़ हुआ है, ओनली दैट मच डिफरेंस इज देयर। यहाँ एक बॉय की बात हो रही है, यहाँ मैनी बॉयज़, तो इन पीछे जो आता है सेंटेंस में जिस नाउन का, अगर वो प्लूरल है तो मैं मैनी से बात कर रही हूँ, और या ऑल, और जब मैं पीछे अगर देखिए एक नाउन की बात हो रही तो वो यू सिंगुलर, तो यू सिंगुलर में भी यू रहता है और प्लूरल में भी यू रहता है, ठीक है। और यू के साथ बट वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी, इस चाहे वो सिंगुलर में यूज़ हो रहा चाहे वो प्लूरल में यूज़ हो रहा, ठीक है। देन है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। थर्ड पर्सन प्रोनाउन बेटा क्या होता है? द पर्सन स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में हम बात करते हैं, है ना, किसी भी अंकल आंटी के बारे में बात करते हैं, अपने फ्रेंड या भाई बहन के, तो उसके लिए हम ही या शी लगाते हैं सिंगुलर में ना। बॉय के लिए वन बॉय, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में फर्स्ट होता है सिंगुलर में ही इज़ यूज फॉर अ बॉय एज अ सब्जेक्ट वर्ब से पहले, और एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ होगा तो हिम माने उसे, और हिज होता है उसका पॉजेसिव, इसके साथ कोई कॉमन नाउन ज़रूर लगता है, ठीक है। फिर होता है इसी में दूसरा पार्ट होता है इसका शी इज़ यूज फॉर वन गर्ल, फेमिनाइन जेंडर, वह एक लड़की बोलते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है हर मतलब उसका, उस लड़की का, ठीक है, हर्स माने उसका। फिर होता है आपका इट, ये भी सिंगुलर होता है, इट यूज फॉर एनिमल और नॉन लिविंग थिंग इन सिंगुलर, ओके, वन एनिमल वन थिंग के लिए, और इसका ऑब्जेक्टिव भी इट होता है और पॉजिटिव इट्स होता है। अब ही का, शी का और इट का, अगर हम दो बॉय की बात करेंगे तो उसके लिए भी दे लगेगा, दो गर्ल्स की बात करेंगे तो भी दे लगेगा, तो यानी कि ही का प्लूरल भी दे होता है, शी का प्लूरल भी दे होता है और इट का प्लूरल भी दे होता है। और जब हम मिक्सअप बहुत सारे लोग, एक से ज़्यादा लोगों की बात करते हैं तो हमेशा उसके लिए दे का यूज़ करते हैं, बस इतना आपको ध्यान रखना है। दे माने वे, इट कैन बी टू गर्ल्स, इट कैन बी टू बॉयज़ और बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़ ऑल टुगेदर, ठीक है। दैम उसका ऑब्जेक्ट होता है, दैम मीन्स उन्हें, और देयर उनका पॉजिटिव केस होता है देयर्स, ठीक है ना, उनका। तो ये वर्ड देखिए मैंने मीनिंग लिखा है, तो आपको याद करने का तरीका है आई, मी, माइन, पर माइन इसमें पॉजिटिव होता है, आपको मेनली इन दोनों को याद रखना है, ठीक है ना। पॉजिटिव वाला भी आपके उसमें नहीं है, बट फॉर योर नॉलेज आई हैव जस्ट शेयर दिस वन, ओके। ये वाली हो सकता है आपकी बुक में दी हो टेबल, दूसरे तरीके से दी हो, पर होती यही है पर्सनल प्रोनाउन की, ठीक है बच्चे।